Morning, students. Now, we in the last class, as we had focused upon the upon the tribals' life, their settlements in India, where they are settling, and their concentration of their population and their percentage all over the country. Now, here in this uh, period, we have to be the centered. Now, regarding the tribes, we know very well in the class 11th, I had already mentioned these things that if about the tribals, there was the views, European views, British colonist views about them, and they wanted the tribals should be as in the tribe they wanted to prove, and they had tried to prove कि that कि tribals say are and the tribals say tribals are are a distinct community, and tribals are completely the outstream completely isolated from the main stream of the our society, because the tribals live in isolation. They had their own culture. They had their own culture, and they are forest dwellers. In all respects, the tribals are quite different from our mainstream society. आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि how the Indian sociologists, they did not accepted these colonialist views. Colonial views को उन्होंने accept नहीं किया, और Indians से sociologists now studied and try to prove in their studies that tribals say were particularly tribals were the part of the our backward main society, as in our main society as the backwards are here. So they were also a backward, more backward community living in India, and this is the need of the country. The need is the This is the need of the government. Now they should be given the and the relief and the developmental programs should be launched for them as the backwards classes are being given. The Indian sociologist now suppose them as a part of the Indian society. मेरे कहने का ये मतलब है कि जो आप जानते हैं, आपको पढ़ाया है हमने कि भारतीय सोसाइटी सोशल ऑर्डर्स में उनको मानते थे कि एक एग्रीकल्चरिस्ट या उसके बहुत ही करीब, दे आर द पार्ट ऑफ दैट. लेकिन ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश ने उन्हें टर्म दिया कि देश ट्राइब्स टर्म भी ब्रिटिश का ही दिया है. हम लोग तो आदिवासी वगैरह कहते थे, लेकिन ट्राइबल्स जो ट्राइब्स टर्म है, इट इज द ब्रिटिश टर्म एंड गिवन बाय द ब्रिटिशर्स. तो ये ब्रिटिश से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि दे वेर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोशल ऑर्डर्स. जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे बिल्कुल वो अलग है, आइसोलेटेड है, एंड दिस शुड बी द गिवन द प्रिजर्वेशन एंड गिवन द रिजर्वेशन कहिए, या उन्हें मोर प्रोटेक्शंस की जरूरत है, एक मोर अटेंशंस की जरूरत है. इस पर उन्होंने इम्फेसिस किया था. लेकिन हमारे इंडियन सोशलोजिस्ट क्या कहते हैं कि नहीं, हम जैसे अपने बैकवर्ड से कम्युनिटीज़ को या बैकवर्ड सोसाइटीज़ को रिलीफ देते हैं और उसके लिए करते थे, लाइक दैट दे आर द पार्ट ऑफ दैट. और ब्रिटिश ने ये भी कहा कि इफ दे विल बी द ब्रॉट टुगेदर द मेन सोशल ऑर्डर एंड मेन सोसाइटी, अगर उसको लाया जाए उन्हें ट्राइबल्स को, तो दे विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मेन स्ट्रीम्स. उनका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होगा, एंड टिल नाउ दे हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन. लेकिन ब्रिटिश इस बात को भूल गए. दे फॉरगेट द राइटिंग that during their time the tribals revolt started. Hundreds of revolt happened in India, uh,
India against the British Raj, and British Raj were the first. They deeply now infiltrated or penetrated the internal uh, habitat or internal their customary rights, and they evacuated them from the jungles and forced them to become laborers like the Africa, as they were now following the policy in Africa to bringing and trapping these people at the work in their mines or in factories or the railway construction work. They and forced them to at the work. Here the Britishers now reserve made the reserve large forest gather. उनका क्या था livelihood का source जंगल्स था, जंगल को उन्होंने रिजर्व अंडरस्टैंड रिजर्व्स और उनको इवैक्यूएट करना और the many that still this process is going on. The tribals now here we are going to now see the different views given regarding the tribes as a carrier of a concept. एक उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट क्वाइट द फर्स्ट 1960 में देखा जाए स्कॉलर्स जितने भी थे दे फॉलन इन द डिबेट कि ट्राइब्स शुड बी सीन एज वन एंड ऑफ अ कंटिन्यूम विथ द कास्ट बेस्ड हिंदू पीजेंट सोसाइटी. उनको क्या मानना चाहिए कि हिंदू पीजेंट सोसाइटी जो फार्मर है किसान है उस सोसाइटी का एक कंटिन्यूअस विद द कास्ट बेस्ड उनको मानना चाहिए. दे आर कंटिन्यूइंग टुगेदर देम एंड और whether they were and altogether different kinds of the community या उससे मान लिया जाए कि हमारे हिंदू पेजेंट्स सोसाइटीज को पार्ट है या हमें ये माने कि दे आर द ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कम्युनिटी. तो टू यहाँ पे दो बहस है, दो डिस्कशन है. दोज हु आर्गू फॉर कंटिन्यूम जिन्होंने कहा कि जो आर्गू करते थे कि दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द आवर पेजेंट्री पीपुल, उनके साथ इनको अलाइन किया जाए, उनके साथ कंटिन्यू किया जाए कि फ्रॉम नाउ दे आर्गू कंटिन्यूस आर ट्राइब्स एज नॉट बीइंग द फंडामेंटली डिफरेंट. ये जो कंटिन्यूम थ्योरी को मानते हैं तो उनका ये कहना है दे बिलीव दैट कि दे शुड फंडामेंटली दे आर द नॉट डिफरेंट, ट्राइबल्स आर फंडामेंटली एंड फ्रॉम द कास्ट पीजेंट सोसाइटी से वो अलग नहीं है. They are not in any respect the different fundamentally, but merely less stratified. जिस तरह से जो पेजेंट सोसाइटी है हमारा मेन सोसाइटी स्ट्रीम सोसाइटी है वो स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफिकेशन है, बहुत टाइट स्ट्रेटिफिकेशन है. लेकिन ट्राइबल्स में ये बहुत स्ट्रॉन्ग और द टाइट स्ट्रेटिफिकेशंस नहीं, दे आर द लूज स्ट्रेटिफिकेशन है. एंड मोर ओवर फीवर लेवल्स ऑफ हेरारकी है, हम लोग की तरह अपर लोअर एंड इस तरह के हेरारिकल सोसाइटी एंड कम्युनिटी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि लोअर है एंड विथ ए मोर कम्युनिटी बेस्ड है. ये कम्युनिटी बेस्ड है रादर देन इंडिविजुअल मोशन ऑफ द रिसोर्स ऑनरशिप. और उनमें क्या है कि इंडिविजुअल हम लोगों में क्या है एमॉन्ग्स अस कि इंडिविजुअल ऑनरशिप का सेंस है. We now are the very stick to the individual ownership के notions को हम follow करते हैं प्रॉपर्टी की फॉलो, लेकिन वो they believe in a collectiveness, एक साथ along with एक collective मानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है वो collective, जंगल्स है वो collective, इंडिविजुअलिज्म ये मेरा है पर्टिकुलरली ऑनर ये they don't believe. तो दिस इज द ट्राइबल फीचर्स, सोसाइटी का ये फीचर्स. अगर एक हंट करते हैं तो वो डिवाइड करके, ये नहीं कि हमारा कभी अधिक ले लिया ये मेरा हो गया और ये तेरा हो गया. नो, दैट इज द देयर इज द ए कलेक्टिव फीलिंग है. एवरीथिंग नेचर ने जो भी दिया है वो कलेक्टिवली अकॉर्डिंग टू योर नीड. सो एक कम्युनिस्ट व्यूज है उनमें, कम्युनिज्म की व्यूज, लेकिन हम में क्या है, हम लोग इंडिविजुअल एज मच एज एक्वायर, हम अधिक से अधिक हम एक्वायर करना चाहते हैं अपने पर्सनल और इंडिविजुअल नीड्स के लिए एंड इंडिविजुअल पोजीशंस. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ दैट. सेकंड है कि some opponents argue that tribals were wholly different from the caste.
कुछ मानते हैं कि ये डिफरेंट है कास्ट से, जो हमारा कास्ट सिस्टम है इससे अलग है, बिकॉज दे हैड नॉट नोशन ऑफ द प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन। हमारे कास्ट सिस्टम में क्या है, नोशन है ना, अनटचेबिलिटी है, प्यूरिटी एंड पॉल्यूशंस के व्यूज है, अपने सेंस है, फीलिंग्स है, लेकिन उनमें नहीं है। और सेंट्रल टू द का, और ये तो कुछ आर्गुमेंट जो कहते हैं कि कंटिन्यूम थ्योरी को जो विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, उनका मानना है, दे बिलीव दैट यू नो उनमें जैसे हमारे मेन सोसाइटी में प्यूरिटी और पॉल्यूशंस पर बेस है, ट्राइबल्स में नहीं है। दैट्स वाई दे आर नॉट पार्ट ऑफ द आवर सोशल ऑर्डर्स, वो हमारे सोशल ऑर्डर्स के पार्ट नहीं है। एंड नाउ, और इन शॉर्ट फर्दर, द आर्गुमेंट फॉर द ट्राइब कास्ट डिस्टिंक्शन वाज फाउंडेड on the assumes cultural difference between the Hindu caste with their beliefs in the purity and pollution, or hierarchically integration, and animist tribals with their more egalitarian। और ये भी कहते हैं जो एनिमिस्ट हैं, हम लोग एनिमिस्ट नहीं, इस पर आधार पर, इस ग्राउंड पर वो उनको फर्क मानते हैं। दूसरी बात कि इगलिटेरियन सोसाइटी है उनका, वो किनशिप बेस्ड है, मोड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किनशिप बेस्ड पर है सोशल मोड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और वो इगलिटेरियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो जो दैट इज द नॉट इन आवर सोसाइटी। तो ये इनका कहना है कि कंटिन्यूम थ्योरी के अगेंस्ट में ये मानते हैं कि दे आर नॉट आवर पार्ट, दे हैव द सर्टेन डिफरेंट फीचर्स। एंड मोर ओवर, हियर वी सी बाय द 70s दिस ऑल दिस मेजर डिफरेंसेस जो था या डेफिनेशंस था, ये क्या किया गया, नाउ फॉल्टी इसको डिक्लेयर किया, और ए न्यू नोशंस नाउ केम अबाउट द ट्राइबल से। जब हमारे इंडियन से सोशोलॉजी इमर्ज किया तो नए नोशंस को एक्सेप्ट किया गया, और इट वाज पॉइंटेड आउट दैट ट्राइब्स peasants peasantry distinction did not hold the now in terms of any other commonly advanced criteria। कहा जाता है कि एनी अदर साइज, आइसोलेशन, रिलीजन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सम इंडियन ट्राइब्स लाइक संथाल, जिसे कहा जाए कि ये मानते हैं कि इधर ये कहा गया कि वो हमसे अलग नहीं है, दे आर नॉट फ्रॉम द आवर मेन सोसाइटी, क्योंकि आज भी देखा गया है कि साइज में, आइसोलेशन, रिलीजन में, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लेकिन सम इंडियन ट्राइब्स लाइक संथाल हैं, गोंड्स अगर देखें, संथाल, गोंड्स और भील्स वेरी लार्ज, बहुत से लार्ज है साइज में, ऐसा नहीं कि कम है, दे आर लेस एंड स्प्रेड ओवर द एक्सटेंसिव टेरिटोरीज उनका है, दे आर द होल्डिंग एंड सेटल्ड। एंड नाउ सर्टेन ट्राइब्स जैसे मुंडाज हैं, ये झारखंड में मिलते हैं मुंडाज एंड द होस and the other have long since turned to the settled agriculture। और ये धीरे धीरे क्या हो गए, ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, मुंडा और हॉस, they now settled। and moreover even hunting gathering tribes like the भी कहा जो hunting gathering tribes थे, dependent on the things of the surroundings, they now turned into the Beer-Wars of Bihar। Now they became specialized in the household work and making the basket, pressing oils, ये काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। They are the well organized in this। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ट्राइबल्स आर द डिफरेंट एंड दे आर आउट ऑफ अस। एंड फर्दर अगर देखा जाए, इट हैज पॉइंटेड आउट नंबर ऑफ केसेस in the absence of other alternatives caste और नॉन ट्राइबल्स हैव टर्न टू द हंटिंग। दूसरी तरफ देखा जाए, जो नॉन ट्राइबल थे वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग्स में टर्न हो गए। तो ये जो इंटीग्रेशन है सोसाइटी में, और इसमें जो आउस्ट भी होते हैं और इंटीग्रेट भी होते हैं, तो दिस इज द फेनोमेना ऑफ अंडरस्टैंड। तो हम उसको आइसोलेट कैसे माने। फर्दर अगर देखा जाए कि यहाँ पे द कास्ट ट्राइब्स वाज accompanied by a large body of literature on the mechanism into Hindu society। कास्ट ट्राइब है accompanied by large
सोसाइटी थ्रू आउट द एजेस थ्रू द सांस्कृताइजेशन। अब हम देखें कि सांस्कृताइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए कि ट्राइबल्स आर नाउ coming and being absorbed in our society, main society, means they are imitating or coming into the our fabrics, वो हमारे फैब्रिक्स में हमारे फ्रेम में आ रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। एक सांस्कृताइजेशन प्रोसेस बहुत पहले से है और ये सांस्कृताइजेशन प्रोसेस में दे आर द कमिंग टू द मेन सोसाइटी एंड एक्सेप्टेंस इनटू द शूद्रा फोल्ड। और उसको क्या किया गया है, अगर देखा जाए हिस्ट्री तो उनको शूद्रा फोल्ड में उनको एक्सेप्ट किया गया है, शूद्रों के कैटेगरीज में रखा गया। एंड मोर ओवर थ्रू द एक्यूमुलेशन एंड सो ऑन and through the whole span of Indian history is often seen as an observation of different tribal groups in the Hindu society। अगर पूरी इतिहास को हम देखें, पहले ही मैंने कहा कि दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्राइब्स इनटू द हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी में उनका ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में वो आर कमिंग एंड हियरार्की एज देयर लैंड वेयर colonized or they were put in the lowest hierarchy and rank. Why? Varying because groups into the caste at a varying levels of the hierarchy as their land were colonized and forested cut down। जैसे अंग्रेजी और ब्रिटिश के आने के बाद उनके लैंड को ग्रैब कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनके फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया, रिजर्व कर दिया, उन्हें बाहर कर दिया। उसके बाद वेयर दे गॉन, they went where these forest dwellers gone, tribes कहाँ चले गए? They now assimilated in the Hindu society, though at the lower strata, lower ranks। हालांकि मानिए कि लोअर स्टाटा में ही गए, लोएस्ट स्टाटा में, लेकिन they were absorbed in the Hindu main society because they were evacuated from their customary rights and this is seen either as a natural और इसको हम स्वाभाविक कहें या हम इसको आर्टिफिशियल या पैरेलल टू प्रोसेस बाय विच ग्रुप्स आर एसिमिलेटेड इनटू द हिंदू सेक्ट्स। धीरे धीरे वो हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट हुए और इट इज सीन एज द या तो एक्सप्लॉइटेटिव्स देखा जाए, हम एक्सप्लॉइटेटिव पॉइंट, तो दोनों प्रोसेस चला। एक तो वो नेचुरली हमें इमिटेट करके सांस्कृताइजेशन हुआ, हमारे साथ आए। दूसरा ब्रिटिश के आने के बाद they were forced and live to come to the plains and assimilated along with the main society के साथ वो assimilate। This is the and more early schools anthropologists कहते हैं कि emphasis that cultural aspects of tribal observation into the mainstream में cultural aspects को main factors मानते हैं, उनका जो observation हुआ वो कल्चरल। वाइल द लेटर जो राइटर्स हैं, जो इधर के जो रिसेंट राइटर हैं, कंसंट्रेट ऑन एक्सप्लॉइटेटिव एंड पॉलिटिक्स नेचर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। लेकिन उनको जो अपने सोसाइटी में लिया गया या उनसे जो क्लोजनेस हुआ या उनमें एसिमिलेशन हुआ वो एक्सप्लॉइटेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से हुआ कि उनको क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि उनका लेबर और उनका एक्सप्लॉइटेशन किया, उनके लैंड्स एक्वायर किए जाए, उनके लेबर्स को यूज किया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैड बीन द ब्रॉट अंडर दिस सिस्टम एंड मोर ओवर कुछ लोग मानते हैं कि नाउ सम स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि दे हैव आर्ग्यू दैट कि देयर इज नो कोहेरेंट बेसिस फॉर ट्रीटिंग ट्राइब्स एज ए प्रिस्टाइन मीन्स ओरिजिनल और द प्योर। कुछ कहते हैं कि उनको कोहेरेंट ट्रीटिंग एज ए प्रिस्टाइन, उनको माना जाए जिससे बिल्कुल अछूत है, प्रिस्टाइन है, नॉट टच इन द, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सोसाइटी अनकंटामिनेटेड बाय सिविलाइजेशन, लेकिन नाउ दे propose instead that tribes should really be seen as a secondary phenomena arising out of the exploitative colonist contact between the existing state। लेकिन जब वो कॉलोनी ब्रिटिश आए तो एक कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये कॉलोनीज, इनका कॉन्टेक्ट के आने के बाद दे वेर नाउ कॉलोनाइज्ड, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलोनाइज गवर्नमेंट नाउ मेड and now made the dominations over them, penetrated their customary life, and now
they are subjected to be the as a exploitation. So ये प्रिस्टाइन्स नहीं रह गए. The British government deeply interfere in their customary rights or colonist contact between the pre-existing states and non-group like the tribals. गवर्नमेंट ने क्या किया? नॉन ग्रुप ट्राइबल्स को पेनिट्रेट किया. दिस कॉन्टेक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स द नाउ एन आइडियोलॉजी ऑफ ट्राइबलिज्म. और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंटरफेन की तो उन्होंने आइडियोलॉजी किया ट्राइबलिज्म का. द ट्राइबल ग्रुप बिगिन टू डिफाइन देमसेल्फ एज ट्राइबल्स. और ये ब्रिटिश उनको ट्राइब्स नाम देना, उनको एक अलग कम्युनिटी क्रिएट कर देना, ये ब्रिटिशों का काम था, अंग्रेजों का काम था कि उन्हें भी उनका एक्सप्लॉइटेशन भी किया. और इसके बाद आफ्टर दैट उनको क्या किया कि एक ट्राइबल आइडेंटिटी दे दिया. क्योंकि ब्रिटिश का पहले से ही ऐसा था कि पूरे भारत के हर कम्युनिटी को डिवाइड कर देना और उसमें एक डिसिसिव सेंस क्रिएट करना. तो ट्राइबल्स नाम देकर इनको एक आइडेंटिफाइड एक्सप्लॉइटेशंस भी किया, इंटरफियर भी किया, उनके कस्टमरी राइट्स को भी उसने स्नैच किया, उन्हें फोर्स किया माइंस में और एंड प्लांटेशंस में वर्क करने के लिए. और आफ्टर दैट ओवरऑल ने क्या किया उन्होंने कि दे नाउ टर्म दे दिया ट्राइबलिज्म. एक आइसोलेटेड उन्होंने उनको आइडेंटिटी देकर उन्हें अलग करने की कोशिश की. एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द न्यूली इनकाउंटर्ड अदर्स. और उनको न्यूली इनकाउंटर्ड से डिस्टिंग्विश कर दिया. कि जो एसिमिलेशन का प्रोसेस चल रहा था बहुत पहले से, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्टेन एक एक्सप्लॉइट तो किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें एक रिजेंटमेंट्स की सेंस क्रिएट करने की कोशिश की. मोर ओवर नेवरथलेस, इसके बावजूद भी द आइडिया द ट्राइब्स आर लाइक द स्टोन एज हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज दैट हैव रिमेन्ड अनटच्ड बाय टाइम, दिस इज स्टिल कॉमन. एंड इवन दो दिस हैज नॉट बीन द ट्रू फॉर ए लॉन्ग टाइम. अभी भी उनको यही सोचा जाता है कि वो हंटिंग करते हैं, गैदरिंग्स करते हैं, कि नहीं, ये दिस हैज बीन अनटच्ड बाय द टाइम, is the still common even though this has not been the true for a long time. ये क्योंकि to begin with आदिवासी were not always the oppressed groups they are now. ये हमेशा कहा गया कि ब्रिटिश उसको उनको कहा कि हमेशा ऑपरेस्ड ग्रुप्स रहा है. तो कौन ऑपरेशन किया उन पर? किसने एक्सप्लॉइटेशन किया? ब्रिटिश. एक्सप्लॉइटेशन ट्राइबल्स का किसी ने नहीं किया, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ द रिवोल्ट हुए उनके टाइम, उनके लाइफ को इंटरफेयर किया गया, उन्हें इवैक्यूएट किया गया और उनकी रिसोर्सेज को रिजर्व किया गया, उनको रिसोर्सेज को बैंड किया गया, उन्हीं के लिए बैंड कर दिया. तो ये द ब्रिटिश. लेकिन ये भी हम मानते हैं कि ये तो मानना है कि वो ट्राइबल्स केवल ऐसे स्टेट नहीं था, वो आउटस्टेट ही नहीं थे. ट्राइबल्स नाउ ग्रेजुअली दीज आदिवासी देयर वेयर सेवरल गोंड किंगडम्स. हम ट्राइबल्स को केवल देखा जाए और ब्रिटिश कहे कि इनको एक डिस्टिंक्टिव दिया जाए, ऐसा भी बात नहीं है. दे हैड नाउ कम डाउन टू द मेन सोसाइटी एंड वेयर दे फॉर्म देयर ओन स्टेट्स. उन्होंने बनाया, जैसे बड़े बड़े ट्राइब स्टेट्स बनाए गए, जिस तरह से गोंड किंगडम्स है, गोंड. इसके साथ साथ और इन द सेंट्रल इंडिया सच एज द गढ़, मंडला और चंदा, मेनी ऑफ द सो कॉल्ड चंदा, ये बड़े बड़े स्टेट ट्राइबल्स बनाए थे. अब झारखंड में अगर जाएंगे वहां पे तो बहुत से किले और फोर्ट्स हैं जो ट्राइबल किंग्स हैं. तो ट्राइबल किंग्स को एक तरह से एक वीकर सेक्शंस माना जाना, एक आइसोलेटेड माना जाना, दिस वाज नॉट, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन बहुत दिनों से हो रहा था भारतीय समाज में, सोसाइटी में. और हालांकि केवल एक्सप्लॉइटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेज कहते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन के पॉइंट, एक्सप्लॉइट सबसे मैक्सिमम उन्होंने किया, दे डिड सो. और हमारे यहाँ ट्राइबल्स में बड़े बड़े स्टेट्स बनाए गए और मेनी ऑफ द सो कॉल्ड राजपूत किंगडम्स. अगर असम में भी जाइए तो बहुत से ट्राइबल अहोम किंगडम्स, बहुत से ट्राइबल्स किंगडम्स हैं वहाँ पे, और उनका एक वास्ट स्टेट सिस्टम्स रहा है.
तो हम कैसे मान लें कि ट्राइबल्स वेयर द क्वाइट, और उनको एक हम बहुत डिनेग्रेटेड व्यू से देखा जाए? Moreover, many of the so-called Rajput kingdoms, central and the western India, actually emerged through a process of stratification among the Adivasi community themselves. और बहुत राजपूत किंगडम्स हैं, तो ये आदिवासी, इनका जो इमर्जेंस हुआ और स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, तो इसमें आदिवासी ओरिजिन से बहुत से राजपूत किंगडम्स, और उससे एक बहुत ही एलाइंड है ये। और मोर ओवर, stratification among Adivasi community themselves. Adivasi often exercise dominance over the plains people. अब ये भी देखा गया कि आदिवासी वो डोमिनेट करते थे प्लेन्स पीपुल्स पर, कभी कभी रेड्स करते थे, उनके ये लैंड्स को कैप्चर करते थे ट्राइबल्स, एंड मोर ओवर एंड देन थ्रो द लोकल मिलिशिया, और ये मिलिट्री आर्मी हर जगह राजपूत से स्टेट में आप देखेंगे तो ट्राइबल्स आर्मी में सर्विस करते थे। महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल्स आप ले लें तो उसमें क्या था, उनकी फौज कैसे बनी, ट्राइबल स्टेट्स, उनसे असिस्टेंट्स उनको हेल्प मिला वो अकबर के फौज से। अकबर के टाइम में भी बहुत से ट्राइबल्स से फौज में वो और क्लाइंट्स फौज में आते थे, और एग्रीकल्चर एडॉप्ट किए थे। बहुत से इंस्टेंसेस हैं ट्राइबल स्टेट्स के और ट्राइबल सिस्टम्स के, मेन स्ट्रीम्स के साथ उनका इतना गहरा अलाइनमेंट है, लेकिन ब्रिटिश आके उनको आइसोलेट करने, उनका ये क्या था, एक पॉलिटिकल उनकी एंगल्स थी, डिवाइड एंड रूल का। तो ट्राइबल्स को एक अलग और डिस्टिंक्ट फॉर्म देना चाहिए, ट्राइबल नाम देके अलग कम्युनिटी, एसिमिलेशन प्रोसेस को के लिए प्रोसेस को वो चेक करना चाहिए। फर्दर दे आल्सो ऑक्युपाइड द स्पेशल ट्रेडिंग फॉरेस्ट, और ये ट्रेड भी थे, मार्केट सिस्टम में भी इनका बहुत अप्रोच, मार्केट ट्राइबल्स मार्केट रखते, ट्राइबल्स वहाँ पे उस मार्केट में अपनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लाते थे, दे यूज्ड टू ब्रिंग द, और मेन सोसाइटीज के जो ट्रेडर्स थे उनके साथ एकदम फ्रीक्वेंट उनका एक्सचेंज था, लेना देना था। तुम कैसे मान लें कि अलग है उनके अपन ट्राइबल्स? आगे आप पढ़िएगा, आगे के चैप्टर्स में है आपके मार्केट एज इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, कास्ट इंस्टीट्यूशन, तो कास्ट और ट्राइबल्स मार्केट्स होते थे, और द मेन सोसाइटी के जो ट्रेडर्स थे, जो पीपल्स थे, उनके साथ एक फ्रीक्वेंट एसिमिलेशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स था। फर्दर दे आल्सो ऑक्युपाइड द स्पेशल ट्रेड और द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल्स, or recruit the cheap labor had been brought tribal societies in contact with the mainstream society a long time ago, or tribals to be since they provided cheap labor to the mainstream society and people, so that's why उनका एक assimilation है, उनका एक contact they had, very contact for a long times, from the long time they had, and further mainstream attitudes टुवर्ड्स द ट्राइब, जो हमारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, वर्क कॉलोनी देखा जाए तो दे अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, दे हैव वर्क ऑन द कॉलोनियल एरा, डिस्क्राइब द ट्राइब्स एज आइसोलेटेड कोहेसिव कम्युनिटी। तो कॉलोनियल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो पहली बार आए भारत में और स्टडी एमेट्यूरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, आप पढ़े भी हैं 11th में, उन्होंने क्या कहा, कोहेसिव कम्युनिटीज का कॉलोनिज्म हैड ऑलरेडी ब्रॉट इरेवोकेबल चेंजेज इन देयर वर्ल्ड, और कॉलोनिज्म आने के बाद क्या हुआ, वो अपने फॉरेस्ट के लिए वुड्स की जरूरत थी, दे रिक्वायर्ड द फॉर देयर बिग शिप्स, शिप के लिए, क्योंकि नेवल्स पावर के लिए वहाँ से उनके जो हार्ड वुड्स थे जाते थे, तो उन्होंने जंगल को रिजर्व किया फाइन वुड्स के लिए, वुड्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, एंड द रेलवे ट्रैक्स उन्होंने पहली बार यहाँ पे ले डाउन किया, इसकी वजह से ट्राइबल डिसलॉज्ड, अंडरस्टैंड, उनके इंटरनल लाइफ्स को या इंटरनल कस्टमरी लाइफ्स को डिस्टर्ब किया गया, उनके रिसोर्सेज को डिस्टर्ब किया गया, ग्रैब किया गया। तो ब्रिटिश से और फोर्सबली जो विलेज फॉरेस्ट होते थे उसमें उनको अलाउड था रहने के लिए, लेकिन क्या कंडीशन था, कंडीशन वाज दैट कि दे विल सर्व
दे विल रेंडर द सर्विस टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। रिजर्व फॉरेस्ट या एक विलेज फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट तो बिल्कुल वहां नहीं अलाउड था, सबको निकाल के बाहर कर दिया, वेट कर दिया। लेकिन जो विलेज फॉरेस्ट था वहां पे क्या था अलाउड, ट्राइबल्स को, जंगल पीपुल्स को अलाउड था कि वो काम करेंगे, वुड्स कटिंग का काम करेंगे, वुड ब्लॉक्स को लोड करेंगे उनके व्हीकल्स पर। तो इस तरह के कंडीशंस पे उन्होंने रखा। अब जानते हैं कि सिफ्टी कल्टीवेशंस को उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया। इतना ही, और इसके साथ साथ रेलवे ट्रैक्स बनाने के, जंगल्स को क्लियर किया, इसके साथ साथ उन पर टैक्स लगाया, फॉरेस्ट रिजर्व कर दिया। जो एक पास्टोरिज्म का वर्क था, लार्ज स्केल जो कैटल्स रियर करते थे, वो खत्म कर दिया। दे फोर्स देम टू वर्क इन द माइंस, ब्रिटिश माइंस एंड द रेलवे ट्रैक्स। तो नाउ लेट्स सी, एंड मोर ओवर उनके लाइफ में ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रंट पे देखा जाए, ट्राइबल सोसाइटीज वेर फेस्ड विद द इनकर्जन। अब उनमें ब्रिटिश के टाइम से ही उनके जंगल्स में इनकर्सन हुआ, मनी लेंडर्स आने लगे। अब देख रहे हैं मनी लेंडर्स नाउ चार्ज द huge just interest upon the tribals. Moreover, they were also losing their lands faced with the lands non-tribal immigrants settles होने लगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली उनके लैंड्स ग्रैब्स करने लगे, एंड लॉस्ट ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट रिजर्व किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जहाँ पे झारखंड में आप देखेंगे जो ट्राइबल्स एरिया है, अब वहाँ पे माइनिंग वर्क स्टार्ट किया गया मिनरल्स के। तो क्या हुआ, ट्राइबल्स वहाँ से डिस्लॉज, उनका जो कस्टमरी लाइफ था, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, वो वहाँ पे, और दे हैड टू लीव दैट प्लेस, became lost their lands and their customary lives and the culture also. Moreover, primary source surplus extraction in this hilly area में देखा जाए, forest area, it was most proportional in the natural resources, forest minerals which were the main source of income for the colonial state ने, मैंने पहले ही कहा कि मिनरल्स के लिए, फॉरेस्ट वुड्स के लिए उनके लाइफ को इंटरप्ट किया गया, डिस्टर्बटेड। फॉलोइंग द वेरियस रिवेलियन इन ट्राइबल्स एरिया 18th एंड 19th सेंचुरी में, शुरू से कह रहा हूँ कि ट्राइबल 1857 के रिवोल्ट से पहले आप देखेंगे कि हंड्रेड्स ऑफ रिवोल्ट्स हैपन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर डायरेक्टली इंटरफेयरिंग in their life and their livelihood was being rooted out. So the tribals were bound to revolt against the British. They have a, and now further rebellions happened और excluded and partially excluded area, उनको completely exclude किया गया, इसलिए tribals revolt किया उन्होंने। partially excluded का मतलब मीन्स हुआ now village forest, कहीं के जो रिजर्व होता था कंप्लीटली, जो अच्छे फॉरेस्ट होते थे, तो वहां से तो बिल्कुल हटा दिया, लेकिन रिजर्व जो फॉरेस्ट होता था, अंडरस्टैंड, तो रिजर्व फॉरेस्ट में से भी उनको रिजर्व फॉरेस्ट से तो बिल्कुल हटाया, जो पार्शियली जो एक्सक्लूडेड करने का मतलब उसमें उन्हें एट ए कंडीशन छोड़ा कि आप वर्क करेंगे, रेंडर करेंगे सर्विस, तो आप, तो दिस काइंड ऑफ द एक्शंस वेयर एंट्री नॉन ट्राइबल्स वाज प्रोहिबिटेड, regulated. These areas British favored indirect rule through the local kings and the headsmen. They through that the local king or headsmen, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनका अलाइनमेंट्स था, they had accepted the subjugation and the alliances, subordination of the British government. उनके थ्रू tribals were controlled by that. And the famous isolation and versus integration, यहाँ पे दो डिबेट उनके बारे में, एक आइसोलेशनिस्ट और दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन। दो डिबेट है, आइसोलेशनिस्ट जो ट्राइबल्स बिल्कुल अलग रखे जाएं, और एक इंटीग्रेशनिस्ट जो है वो चाहते हैं कि उनका ट्राइबल सोसाइटी का हमारे सोसाइटी के साथ उनका इंटीग्रेशन। दोनों 40s में बिल्ट अपन स्टैंडर्ड पिक्चर, ट्राइबल सोसाइटी आइसोलेटेड एज द होल। आइसोलेटिस्ट साइड आर्ग्यू दैट ट्राइबल्स नीडेड प्रोटेक्शन। जो आइसोलेटिस्ट है उनका मानना है कि ट्राइबल्स शुड, दो व्यूज है कि आइसोलेशनिस्ट और इंटीग्रेशनिस्ट का। तो आइसोलेशन कहते हैं कि ट्राइबल्स शुड बी द गिवन द स्पेशल प्रोटेक्शन,
उन्हें मिलना चाहिए। एंड दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड मनी लेंडर, क्यों, किससे प्रोटेक्शन देकर उन्हें बचाया जाना चाहिए, मनी लेंडर से, ट्रेडर्स जो उनसे लेस रेट पर उनके गुड्स को लेते थे ट्राइबल से और हाई रेट पर बेचते थे। मनी लेंडर्स जो उनको पैसा कुछ देते थे लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट्स कनिंगली लेते थे उनसे। और हिंदू एंड क्रिश्चियन मिशनरीज का उनका अलग इंटरफेरेंस था, बैप्टाइजिंग उनको करना, उनको कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी में। आप आज भी झारखंड में जाएंगे तो बहुत से ट्राइबल्स क्रिश्चियंस, उनकी पॉवर्टी का एडवांटेज लेके उनको कन्वर्ट करना, उनके बच्चों को एक क्रिश्चियन मिशनरी एजुकेशन देती थी और इसके साथ साथ उन्हें इकोनॉमिक हेल्प भी देने और उसके नाम पर उनका रिलीजन चेंज करना। तो ये ट्राइबल्स से क्रिश्चियन मिशनरीज भी उनके लाइफ में, एंड ऑल ऑफ होम वेयर इंटेंट एंड रिड्यूसिंग द ट्राइबल्स डी ट्राइबलाइजेशन लैंडलेस लेबर। और ये सभी क्या कर रहे थे प्रोसेस कि डी ट्राइबलाइजेशन कर रहे थे और इनको किस चीज में चेंज कर रहे थे, एक लैंडलेस लेबर क्लास में चेंज। एंड इंटीग्रेशनिस्ट है, उनका ये मानना है कि नाउ ऑन दी आर्गू ट्राइबल्स वेयर मेयरली बैकवर्ड। हिंदू कहते हैं कि नहीं, आइसोलेशनिस्ट कहते हैं कि भाई उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सब मनी लेंडर्स से और ये मनी लेंडर्स हैं और अदर्स जो ट्रेडर्स हैं ये उनसे चीटिंग करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और क्रिश्चियन मिशनरीज उनके रिलीजियस और कस्टमरी लाइफ में वो क्रिश्चियन मिशनरीज उसमें इंटरफेयर कर रही है। तो ये ट्राइबल्स वुड बी द नाउ कीप एंड ट्रीटेड एज ए आइसोलेशन, इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन उन्हें दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। अदर हैंड्स जो इंटीग्रेशनिस्ट they wanted the argue tribals were merely backward Hindu and their problem had to be the resolved। उनकी प्रॉब्लम क्या करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए, वो मानते हैं, they believe that। and now the address within the same framework, किस तरह से बैकवर्ड्स हिंदू को एड्रेस किया जा रहा है, उनके लिए सोशल वेलफेयर्स के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, पॉलिसीज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्राइबल्स को भी आनी चाहिए बैकवर्ड क्लास। दिस से अपोजिशन डोमिनेटेड, और ये आवाज कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी रिसाउंडिंग हुई। आप पढ़ेंगे जब असेंबली फ्रेम हो रहा था तो ट्राइबल्स की तरफ से बहुत से स्टेटमेंट दिए गए, इन पर ओपिनियन है कि हाउ द ट्राइबल्स कम्युनिटी बी ट्रीटेड इन द फ्री इंडिया, while the finally settled along the lines that ये compromise settled किया गया कि advocate welfare scheme that would be the enable the controlled integration, उनका controlled integration हो और उनके लिए अधिक से अधिक more and more relief works या developmental works लाए जाए या relief and the subsequent schemes for tribal development 5-year plans में, and moreover tribals sub plans, tribal welfare block, special multi-purpose area and schemes all continued with the mode of thinking. And ultimately, but the basic issue here is that integration of the tribals has neglected, और इसमें उनका complete integration को neglect किया गया, and moreover their own needs or desires integration has been the on the terms of mainstream society, और इंटीग्रेशन भी किया गया मेन स्ट्रीम सोसाइटी के आधार पर, इट्स ओन बेनिफिट्स के आधार इंटीग्रेशन को छूट दी गई। क्यों, और इस पर एग्रीमेंट हुआ कि भाई इनका इंटीग्रेशन ग्रेजुअली हो। क्यों कि दिस सोसाइटी मेन स्ट्रीम उनका एट द कॉस्ट ऑफ देम डेवलपमेंट वाज बीइंग डन, एंड द ट्राइबल सोसाइटी हैव हैड देयर लैंड्स फॉरेस्ट टेकन अवे। धीरे धीरे क्या उनका लैंड्स फॉरेस्ट ये सब being taken away and their community is shattered in the name of और अल्टीमेटली क्या है, आजाद भारत में भी उनकी कम्युनिटी धीरे धीरे सैटर्ड हो रही है, किसके नाम पे, डेवलपमेंटल वर्क्स, उनके डेवलपमेंट। तो वेदर यू हैव टू बी थिंक कि व्हाट शुड बी दैट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना है और थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। द नेक्स्ट डे क्लास द अदर